to Excel Learning, and this is your digital learning platform. And today we are going to look into a poem, A Thunderstorm, written by Emily Dickinson. And this particular poem has been taken from class 7 English literature book Skylark. ओके सो शुरू करने से पहले प्लीज एक पेंसिल ले लो, तो फिर जो पॉइंट मैं आप लोगों को बोलूंगा इस वीडियो में आप लोग नोट डाउन कर सको. ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं. ये पोएम हम लोग समझेंगे लाइन बाय लाइन and word by word along with the literary device or figure of speech and themes of this particular poem. Okay, so let's get into the chapter. See, a thunderstorm. पहले तो मैं ये बता दूं कि इस पोएम में थ्रू आउट द पोएम एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ओके, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ये वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है ये थ्रू आउट द पोएम यूज किया गया है. व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन इज एक्चुअली अ फिगर ऑफ स्पीच थ्रू व्हिच लाइफ इज पुट इनटू some non-living things. As an example, we can say, suppose a pen is talking. I am a pen and I am made in a factory. तो देखो पेन बात नहीं कर सकता है, राइट? पेन एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पे राइटिंग को अट्रैक्टिव करने के लिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं या फिर ऐसे बोल रहे हैं मानो कि ये पेन जो है ये खुद बात कर रहा है. That is called personification. That means actually the pen is being treated as a person. So person से आया है personification. Clear? So personification is used in this particular poem throughout the poem. Okay? देखो, अच्छा और एक पॉइंट मैं बता दूं कि दिस पोएम रिप्रेजेंट्स द हार्मफुल साइड ऑफ द नेचर. हार्मफुल साइड ऑफ द नेचर, ये दो पॉइंट आप लोग लिख लेना. ओके, कि हम लोग हमेशा ये बोलते हैं नेचर इज ब्यूटीफुल, एंड इट इज इंडीड ट्रू कि नेचर इज रियली ब्यूटीफुल, बट बिसाइड्स द ब्यूटी ऑफ द नेचर, नेचर हैज अ हार्मफुल साइड आल्सो, जहां पे हम लोग या फिर हम इंसान क्या होते हैं, हार्म होते हैं. लेकिन उसके लिए यानी कि ये जो हार्मफुल साइड नेचर का जो है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही लोग हैं, हम इंसान ही हैं. हम लोग पहले नेचर को हर्ट करते हैं, तब जाके नेचर हम लोग को हर्ट करता है. ठीक है, so see, a thunderstorm, Emily Dickinson. The wind began to rock the grass with threatening tunes and low. The wind began to rock the grass. Wind personification and threatening tunes and low. That means the wind is making a sound which is very threatening or which is warning. Okay, it is a sense of warning. This particular line is showing a sense of warning. So the wind is blowing with the sound, with a threatening sound, tunes and low, and the wind is actually rocking the grass. हवा जो है वो हिलाने लगा किसे, घास को. He threw a menace at the earth, a menace at the sky. See, two locations are mentioned. First of all earth and second one is sky. And यहाँ पे he मतलब wind और menace मतलब danger. That means the way the wind is blowing with a threatening sound and the way wind has started rocking the grass, through this or seeing this, the poet is very much sure. The poet can realize that actually wind has thrown a danger to the earth and to the sky. तो क्या danger throw किया है wind ने? That is thunderstorm. Sorry, that is thunderstorm. Okay, so I hope the first stanza clear. In the first stanza, the poet is telling the wind is blowing with a threatening tune and the wind is actually rocking the grass. That means अब तूफान जो है वो आ रही है, तूफान जो है वो आ रही है. This is the first stanza, sorry, this is the first stage of a thunderstorm. Okay, and the wind has thrown a danger, the wind has thrown a menace where, at the earth and at the sky. Clear? Now the second one. The leaves unhooked themselves from trees and started all abroad. The leaves are unhooking themselves, yani ki the wind is blowing, the hard wind is blowing, the strong wind is blowing. That's why all the leaves are unhooking themselves. Same,
personification. Okay, and all the leaves are scattered in the road, and the dust did scoop itself like hands and threw away the road. Once again, leaves personification, dust personification. और देखना ऐसा होता है तूफान आने से पहले जब बहुत जोर से हवा चलता है तब धूल मिट्टी सब कुछ उड़ने लगता है। तो यहाँ पे इसी चीज को पोएट ने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि इतना जोर से हवा चल रहा है कि मान लो कि डस्ट जो है या फिर धूल जो है वो खुद को स्कूप कर रहा है। द डस्ट इज एक्चुअली स्कूपिंग इटसेल्फ लाइक हैंड्स एंड इट इज थ्रोन अवे in the road. Okay, so the second stanza conveys a sense of chaos. The second stanza conveys a sense of chaos. I hope it is clear. Now see the third one. The wagons quickened on the street, the thunder hurried slow. See, ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Wagons पर्सोनिफिकेशन. अब बोल रहा है कि जब अप्रोचिंग डेंजर जो आ रहा है, जो तूफान आ रहा है, उसके लिए क्या हुआ, वैगन जो है, व्हीकल जो है, वो बहुत जल्दी अपना स्पीड गेन कर रहा है ताकि वो जल्दी से बिफोर द थंडरस्टॉर्म सो दैट द वैगन कुड रीच इट्स डेस्टिनेशन. बट द थंडर is hurrying and the thunder is coming approaching hurried and slow. यानी कि कभी कभी बहुत जोर से तूफान आ रहा है, कभी कभी धीरे धीरे तूफान आ रहा है. सो ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो दो वर्ड है इसी के द्वारा द पोएट has created a tension throughout the poem. ओके, तो कभी कभी जो है तूफान जो है वो बहुत जोर से आ रही है और कभी कभी जो है धीरे धीरे आ रही है. सो समहाउ द विंड और द थंडरस्टॉर्म इज कंफ्यूजिंग अस. Sometime it is in hurry, sometime it is in a slow nature. Okay, so through these words the poet has actually created a tension in the poem. The lightning showed, देखो lightning showed personification. अब lightning क्या दिखा रहा है, yellow beak and then a livid claw. यानी कि अब जाके lightning जो है वो हो रहा है और lightning को किसके साथ तुलना किया गया है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल येलो बिग ऐसे और लिविड क्लॉ या ऐसे. ओके, दैट मींस वंस अगेन इट कन्वेज अ सेंस ऑफ डेंजर, अ सेंस ऑफ डेंजर. देखना जब लाइटनिंग होता है तब कैसे होता है, ऐसे लगता है ना देखने में कि एक क्लॉ की तरह लगता है या फिर बिग की तरह लगता है. तो इसीलिए यहाँ पे भी पोएट ने लाइटनिंग को येलो बीक के साथ कंपेयर किया है और लिविड क्लॉ के साथ कंपेयर किया है. यानी कि नोकीला जो क्लॉ है उसके साथ पोएट ने यहाँ पे लाइटनिंग को कंपेयर किया है. सो देखो अब बिग जो है और या फिर क्लॉ जो है ये सब हार्मफुल होता है. हम लोगों को अगर लग जाएगा स्किन में तो खून निकल आएगा. सो सिमिलरली द पोएट इज ट्राइंग टू represent the fact that the thunderstorm is coming and it is definitely harmful for the earth, for the sky and for the human being. Okay, next answer. The birds put up bars to nest. That means it conveys a sense of responsibility. Okay, the birds are actually closing their nests. Why? To save their children. And the cattle fled to barns. वो लोग जो है अपने बांस या फिर फार्म की तरफ जा रहे हैं. देयर केम वन ड्रॉप ऑफ जायंट रेन. देखना कभी ऐसा होता है कि बहुत मोटी मोटी बूंद गिरता है बारिश का. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन दिस पर्टिकुलर लाइन. देयर केम one drop of giant rain. Okay, giant rain, and then as if the hands that held the dams have parted hold, the waters wrecked the sky. अब ये समझने के लिए ये दो स्टैंजा को आप लोग को कनेक्ट करना होगा. देखो तो बर्ड्स का पार्ट हो गया, केटल का पार्ट हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में यानी कि थर्ड लाइन में कि पोइट ये बोले हैं कि तब क्या हुआ, एक बड़ा सा एक जायंट रेन का ड्रॉप आके गिरा और ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई है जो कि डैम को
रोक के रखा था। कैसे? इस तरह से। ओके, डैम मतलब यहाँ पे क्लाउड्स, क्लाउड्स कोई है जो क्लाउड्स को ऐसे रोक के रखा था, और उसने क्या किया, उसने अपना होल्ड को पार्ट कर दिया, यानी कि इस हाथ को इधर ले लिया और इस हाथ को इधर ले लिया। तो मानो कि अगर यहाँ पे ऐसा क्लाउड रहेगा और इसमें पानी रहेगा, तो ये हाथ इधर चला गया, ये हाथ इधर चला गया, तो बारिश जो है वो गिरने लगेगा। राइट, आई होप क्लियर हो गई ये बात। सो एंड देन एज इफ the hands that held the dams had parted hold, the waters raked the sky. That means there was water and water everywhere, but overlooked, but बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, but overlooked my father's house just quartering a tree. लेकिन मेरे पिताजी का जो घर है वहां पे कुछ नहीं हुआ, वहां पे बस एक पेड़ जो है वो पेड़ टूट गया। ओके, वो पेड़ जो है वो टूट गया। यहाँ पे जाके पोइम का एक्सप्लेनेशन जो है वो खत्म होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, बट का देखो, आज अगर आई मीन नेचर हम लोगों के साथ जो भी करता है, नेचर हम लोगों को जो भी नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम ही लोग हैं, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन करते हैं हम लोग, राइट, और उसी का रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे बट के द्वारा पोइट ये बताना चाह रहा है कि बारिश हुआ, कोई जो है क्लाउड्स को या फिर डैम को होल्ड करके रखा था, उसने अपना हाथ हटा दिया और पूरा एकदम बारिश हो गया, सब कुछ एकदम डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन मेरे पिताजी का जो घर है वो रह गया। यानी कि बारिश जो है या फिर थंडरस्टॉर्म जो है, थंडरस्टॉर्म ने मेरे पिताजी को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन का जो रीजन है वो मेरे पिताजी भी है, उसने भी पेड़ को काटा है, उसने भी आज नेचर को हार्म किया है। तो अगर नेचर चाहता तो मेरे पिताजी को भी हार्म कर सकता था। जैसे कि मानो कि देखो, हम लोग खुद के लिए, हम लोग को फ्लैट बनाना है, हम लोग को घर बनाना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ को काट देते हैं। तो ये हम लोग सिर्फ देखते हैं, चलो भाई क्या हुआ, एक दो पेड़ ही तो बस काट रहे हैं, लेकिन ट्रीज आर द पार्ट्स ऑफ नेचर, दैट मीन्स नेचर को हम लोग हार्म कर रहे हैं, राइट। तो अगर चाहता वो तूफान, अगर वो थंडरस्टॉर्म चाहता, तो पोएट यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि अगर वो थंडरस्टॉर्म चाहता तो मेरे पिताजी को भी हर्ट कर सकता था, बट लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी को हर्ट नहीं किया। मेरे घर के सामने जो पेड़ था, बस वो पेड़ टूट गया। So we should take a lesson from this line, from the last two lines of this poem, that we should pay respect to each and everything on the surface of the earth, and we should not harm our nature for our betterment. Okay, so I hope the poem is clear. लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया, वर्ड बाय वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया। नाउ लेट्स कम टू द थीम ऑफ दिस पोएम। सब फर्स्ट ऑफ ऑल द पावर ऑफ नेचर। ओके, कि द विंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द विंड इज ब्लोइंग, द विंड इज रॉकिंग द ग्रास। ओके, द थंडरस्टॉर्म इज showing its livid claw and its yellow beak. The nature or the thunderstorm is actually forcing the birds to put up the bars, and forcing each and every one to be safe. So it is a power of nature, and the nature is actually showing its power. So power of nature is one of the foremost important themes of this poem. Okay, responsibility birds ke liye. Okay, sense of responsibility as the storm is coming, so the birds are actually putting up their bars to nests to save their children. Helplessness, see the kettle, helpless, the wagon on the street, helpless. They are just hurrying towards their destination, कि हम लोग को कुछ हो ना जाए, या फिर बहुत जोर से तूफान आने वाला है। ये हम लोग के साथ भी होता है ना, कि हम लोग बाहर रहते हैं तो अगर देखते हैं कि डेंस क्लाउड है या फिर बहुत जोर से हवा चल रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, तो हम लोग जोर से पैदल चलते हैं या फिर जोर से गाड़ी चलाते हैं, ताकि तूफान आने से पहले हम लोग घर पहुंच जाए। सो एट दैट टाइम वी फील हेल्पलेस। ओके, सो हेल्पलेसनेस इज अनदर थीम। ओके, डिस्ट्रक्शन, तो ये तो एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत ही नहीं है कि डिस्ट्रक्शन होगा ही। अगर थंडरस्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा, तो डिस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन हुआ है,
कि पोएट का जो पिताजी है, ठीक है, उनके घर को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे एक पेड़ था, वो पेड़ टूट गया। एंड करेज, करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि जब तूफान आता है तो तूफान जितना भी जोर से आए, तूफान पेड़ को हिला सकता है लेकिन गिरा नहीं सकता। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कभी पेड़ गिर जाता है, लेकिन वो रेयर केस है। ओके, तो पेड़ हिलता रहता है, बहुत जोर से हवा चलता है, फिर जब तूफान जब थम जाता है, तूफान जब रुक जाता है, तब पेड़ अपनी तरह फिर से सीना तान के खड़ा हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड करेज। ओके, वी शुड नॉट be afraid of any kind of thunderstorm. It might be any natural thunderstorm, or it might be any trouble or any problem that we face in our life. Okay, even you see the birds, the birds, okay, they are showing their courage. Why? Because they are putting their birds to the nest, and they just want to save their children. Okay, even the wagons, they are just going towards their destination very soon. So all the elements that have been explained, that have been shown in this poem, they are extremely brave and extremely courageous. So courage is another theme of this particular poem. So this is the complete explanation. I hope you have liked the video. So please press the like button. Do comment if you have any question, and I will try to answer you as soon as possible. And please don't forget to subscribe to this channel. Press the bell icon. और एक काम आप लोग का करना है, जो कि आप लोगों को ये वीडियो जो है ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। व्हाई? बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, तो आप लोगों को और कोई चैप्टर चाहिए, एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए, तो मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं। ठीक है, तो आज बस इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, जय हिंद एंड टेक केयर।